Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 4th of Gujarati Standard 8th Gujarat Board Students, chapter 4th Ravi Shankar Maharaj. Okay, बिफोर स्टडिंग अबाउट रविशंकर महाराज अपन थोड़ा उनके लेखक के बारे में कुछ जानेंगे. ओके, तो उनके लेखक कौन थे? धीरूभाई पारिक. उनके लेखक कौन थे? धीरूभाई पारिक, जिनका जन्म 31 अगस्त 1933 में हुआ था. जिनका बॉर्न 31 अगस्त 1933 में हुआ था. कौन सी जगह पे? विरमगाम में. कौन सी जगह पे? विरमगाम में. લેખક શ્રી ધીરુભાઈ પારીખ એ જુદી જુદી શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ભાષા સાહિત્યના વિદ્વાન અધ્યાપક તરીકે પોતાની સેવાઓ આપી છે. કવિતા, વિવેચન, અનુવાદ તેમજ સંપાદન એમના રસના ક્ષેત્રો છે, મતલબ ઇન્ટરેસ્ટ સેક્ટર્સ છે. ઓકે, ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ એવા કુમાર તેમજ કવિલોક જેવા પ્રતિષ્ઠિત સામાયિકોના તેઓએ તંત્રી તરીકેની કામગીરી પણ સંભાળી છે. છપ્પા સંગ્રહ, અંગ પચીસી તેમજ હાઈકુ સંગ્રહ, આજ્ઞા પણ એમના નોંધપાત્ર પ્રકાશનો છે. લેખક શ્રી ધીરુભાઈ પારીખે પ્રસ્તુત પાઠમાં રવિશંકર મહારાજના જીવન કાર્યને સુંદર રીતે વર્ણવ્યું છે. મહારાજ અને વડી સેવક. મહારાજ એટલે તો મોટો રાજા. મોટો રાજા તો સેવા કરાવે કે સેવા કરે. હા, પણ આ મહારાજ તો રાજ વિનાના મહારાજ. નવાઈ લાગે છે ને કે રાજ વિનાના તે વેડી કેવા મહારાજ હોય. હા, આ નવાઈ પમાડે તેવી પણ ખરી વાત છે. લોકોના હૃદય પર જેમની સત્તા ચાલે એવા છે આ महाराज. इनको महाराज बोला जाता था, लेकिन ये सेवक की तरह सबका काम करते थे, सबके दिल में बसे हुए थे. तो क्या बोला कि महाराज को सेवक कैसे बोल सकते? कितनी अलग बात हो गई. महाराज और सेवक दो अपोजिट्स हो गए. तो बोले ऐसे ही थे ये महाराज जो सबके दिल में बसे हुए थे. આ મહારાજને તમે નથી ઓળખતા? લો, તો હું એમનું નામ કહું. એમનું નામ રવિશંકર વ્યાસ. હજી ઓળખાણ ના પડી? રવિશંકર વ્યાસ નામ અજાણ્યું લાગે છે? અરે, એ જ એમનું ખરું નામ છે અને વ્યાસ એ જ એમનું સાચી અટક છે. અટક मतलब सरनेम. तो क्या बोला कि रविशंकर व्यास. तो बोले रविशंकर व्यास सुनने में अननोन लग रहा है, लेकिन उनका असली नाम रविशंकर है, उनका असली सरनेम व्यास है. આ તો એમના લોકહિતના કાર્યોથી, એમની નિસ્વાર્થ પ્રવૃત્તિઓથી લોકોએ જ એમને મહારાજનું બિરુદ આપ્યું છે. આમ એ મહારાજ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. આ મહારાજ એટલે જ ગુજરાતના મુખ સેવક રવિશંકર महाराज. લોકોએ એમને રવિશંકર દાદા પણ કહેતા. महाराज उनका सरनेम नहीं था. उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो उनने लोगों के लिए किया, तो लोगों ने उनको महाराज बोलना शुरू किया. लोग उनको रविशंकर दादा भी बोलते थे. ये महाराज का टाइटल, दादा का टाइटल लोगों ने उनको दिया है. उनका कोई सरनेम नहीं था. ओके, उनका असली सरनेम तो व्यास था. રવિશંકર મહારાજનો જન્મ સંવત 1940માં મહિનાની વદ 14ના દિવસે એટલે કે મહાશિવરાત્રિના રોજ થયો હતો. 1884ના ફેબ્રુઆરી મહિનાની 25મી તારીખે ખેડા જિલ્લાના રડુ ગામે જન્મેલા રવિશંકર પિતાશ્રીનું નામ શિવરામભાઈ અને मातृश्री नाम नाथीबा हतु. मतलब उनका बॉर्न का प्लेस ऑफ बर्थ एंड उनके मम्मी और पापा का नाम दिया है. तो वो किधर बॉर्न हुए थे? महाशिवरात्रि के दिन खेड़ा गांव में उनका बॉर्न हुआ था. उनके पापा का नाम शिवराम भाई और उनकी मम्मी का नाम नाथीबा था. પિતાજી પાસેથી જીવનમાં સારી ટેવો કેળવવાનું અને માતા પાસેથી ખૂબ ચાવીને ખાવાની આરોગ્યની ચાવીનું शिक्षण ये बाड़पनमांथी ज पाम्या हता. उनने बचपन से ही उनके पप्पा से अच्छी हैबिट्स, टेव मतलब अच्छी हैबिट्स सीखी थी और मम्मी से चबा के खाना सीखा. तो बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें सीखना पसंद करते थे. बाळपणथी ज एमने स्वभाव સાહસિક અને નીડર હતો. દિન દુઃખી પ્રત્યેની લાગણીવાળું હૈયું પણ એમને બાળપણથી જ મળ્યું હતું. બાળપણથી જ એ
ઘરના નાના મોટા કામોમાં મદદ કરતા હતા. ખેતીનું પ્રત્યેક કામ એ શીખી ગયા ને હોશથી એ કામમાં જોતરાઈ પણ જતા. કોઈ પણ કામમાં એમને શરમ, સંકોચ અને નાનપ નહીં. નાનું કે મોટું कोई पण काम तेमने मन महिमावतु. मतलब क्या बोला है कि बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत साहसिक, मतलब एकदम सोशल एंड साहसिक, मतलब एकदम स्ट्रेंथ वाले थे, एकदम जरा भी डरपोक नहीं थे, एकदम नीडर थे, एकदम साहसी थे. ठीक है, उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता था. दिन मतलब गरीब दुखी इन लोगों पे बचपन से ही उनको दया आ जाती थी. बचपन से घर के छोटे मोटे सब काम में वो मदद करते थे. खेती के अंदर भी वो खेती भी उनने बहुत जल्दी सीख ली थी एंड बहुत उत्साह के साथ वो उसका काम भी करते थे. उनको कोई भी काम करने में शर्म, संकोच या ऐसा नहीं लगता था कि वो छोटे हो जाएंगे ये काम करके. कोई भी छोटा हो या बड़ा काम वो बहुत मन लगा के करते थे. मोटा થયા પછી પણ એમને કામ કરવાની વૃત્તિ छोड़ी नहीं. हाँ, એમના કામની दिशा बदलाई. मतलब क्या, बड़े होके भी उनने काम करना नहीं छोड़ा. हाँ, काम डाइवर्ट, मतलब दूसरे काम में चले गए. पहले जो काम करते वो नहीं काम करते, अब दूसरे अलग अलग सेक्टर्स के काम उनने शुरू कर दिए करने. महात्मा गांधीना परिचयમાં આવ્યા પછી એમને अनेक कामों उपाड़ लीधा. मतलब गांधी जी के कांटेक्ट में आने के बाद उनने काफ़ी काम खुद पे ले ले कि मैं ये काम कर लूँगा. એ જે કામ ઉપાડે તેમાં દિલ દઈને જોડાઈ જાય. મહાત્મા ગાંધીએ તો કહેલું પણ ખરું, બસ મહારાજની આ જ ખૂબી છે. તેમને જે કામ સોંપો તેમાં એ પોતાની આત્મા રેડી દે છે અને તેથી જ એમનું કામ ઝળકે છે અને તેથી વધુ સારી અસર પડે છે. मतलब क्या, वो एक बार कोई काम लेते थे उनको दिल लगा के कंप्लीट करते थे. महात्मा गांधी ने भी उनकी तारीफ़ करते हुए क्या बोला है कि महाराज मतलब रविशंकर महाराज एक बार कोई काम हाथ में उठाते हैं तो वो पूरा अच्छे से मन लगा के पूरे खुद को उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं और कंप्लीट करते हैं. इसलिए उनके काम हमेशा इतने नोटिस में आते हैं, हमेशा उनको इतना अप्रिशिएट किया जाता है. ठीक है, इसलिए उनकी इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छी पड़ती है. ગાંધીજી સાથેના પરિચય પછી એમને ભારતની આઝાદીની લડતમાં ઝંપલાવ્યું. गांधी जी से कांटेक्ट में आने के बाद उनने भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ना, आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया. यजमान वृत्तिनो धंधो छोड़्यो, विलायती कपड़ा छोड़્યા, ગામ ઘર બધું જ છોડીને राष्ट्रना काम में लागी गया. मतलब उनने फॉरेन क्लोथ्स छोड़ दिए, उनने घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, सब छोड़ के वो सबकी सेवा में लग गए, राष्ट्र की सेवा में लग गए. ठीक है, राष्ट्र के जो काम थे सब कुछ छोड़ के राष्ट्र के काम में लग गए कि अब बस आज़ादी चाहिए. चरखो चलावे, खादीना वस्त्रों પહેરવા, સાદું ખાવું પીવું અને સાદાઈથી રહેવું એ હવે એમનો જીવન મંત્ર બની ગયો. मतलब क्या बोला है कि खादी के लिए वो चरखा चलाते हैं ना, जो मशीन होती है, जो मेड इन इंडिया क्लोथ्स, जो स्वतंत्रता के टाइम स्वदेशी मूवमेंट के टाइम चलता था मेड इन इंडिया क्लोथ्स, तो वो चलाना शुरू किया. फॉरेन क्लोथ्स को टोटली बॉयकॉट किया. ठीक है, और फिर वो क्लोथ्स पहनते, सादा खाना खाते और सादाई से रहते, मतलब एकदम सिंपल जीवन जीना शुरू कर दिया. और वही उनका जीवन मंत्र था कि मुझे सिंप्लिसिटी से रहना है. ठीक है, धीमे धीमे राजकीय प्रवृत्ति स्थाने लोक प्रवृत्तिए एमनो जीवन में प्रवेश करियो. मतलब क्या, अब अभी तक वो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन अभी उनने वो से अपना जीवन किधर डाइवर्ट किया, लोगों की सेवा करने में. પછી તો એ જ પ્રવૃત્તિ મુખ્ય બની ગઈ. લોક સેવાના ક્ષેત્ર એમને પ્રથમ પગરણ માંડેલા. 1911માં વડોદરામાં તેઓ શ્રી ફતેસિંહ રાવ અનાથાશ્રમમાં 2-3 છોકરાઓને દાખલ करावा गया था. वो बड़ौदा गए थे एक अनाथ आश्रम में 2-3 बच्चों का एडमिशन करवाने. अनाथ आश्रम में वड़ाए रविशंकरने फाड़ो उघरावा કહ્યું. ત્યારે તો એ કામ એમના માટે સાવ નવું હતું, પણ એમને આ કામ માથે ઉપાડી લીધું. ઘેર ફરીને એમને એ આશ્રમ માટે ઠીક રકમ એકઠી કરી. ત્યાર પછી ધીમે ધીમે એમને આવા જ કામોમાં પોતાની जातने जोतरवा मांडी. मतलब क्या बोला है कि जब वो एडमिशन करवाने गए थे वो 2-3 बच्चों का अनाथ आश्रम के अंदर,
तो उधर आश्रम में जो सबसे बड़े, जो वडील बोलते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन्हें रविशंकर महाराज को फंड इकट्ठा करने के लिए भेजा। वो काम उनके लिए काफ़ी नया था, लेकिन तो भी वो अपने फंड इकट्ठे करने के लिए निकले। सब जगह घूम के उनने तो भी एक प्रॉपर अमाउंट इकट्ठी कर ली थी। फिर धीरे धीरे उनने एक गांव से दूसरे गांव ये फंड इकट्ठा करने का काम शुरू किया ताकि लोगों की मदद कर सकें। एक बार પેટલાદથી થોડે દૂર આવેલા જોગાન ગામમાં એમને જવાનું થયું. એમને જોયું તો ત્યાં નરી ગંદકી જ ગંદકી. ગામમાં ઠેર ઠેર ગરીબાઈ ડોક્યા કરે. આ ગરીબાઈ અને ગંદકીથી એમનું દિલ દ્રવી ઉઠ્યું. ત્યાં રહી આ દૂષણો દૂર કરવાનો એમને મનસૂબો કર્યો. આજુબાજુના ગામડામાં પણ એ જ પરિસ્થિતિ હતી. મહારાજ તો ગામડે ગામડે ફરવા લાગ્યા. દિવસમાં એકવાર બપોરે કોઈ ગામમાંથી थोड़ा दाल चोखा मेड़वीने खिचड़ी रांधी खाए. मतलब क्या बोला है कि एक बार उनने कोई गांव में गए और वो गांव में इतनी ज़्यादा गंदगी थी और गरीबाई थी, ठीक है, मतलब गरीबी मतलब पोवर्टी थी और बहुत ज़्यादा गंदगी थी. तो उनने तो बस डिसाइड कर लिया कि मैं कैसे भी करके ये गंदगी दूर करूँगा. आजू बाजू के गांव में यही सब हर आजू बाजू के सब गाँव में यही परिस्थिति, गरीबी भी बहुत और गंदगी भी बहुत. तो वो एक गांव से दूसरे गांव घूमने लगे और ये काम पे लग गए. वो दिन में एक बार दोपहर को खाना खाते थे कि कोई भी गांव में से दाल और चावल इकट्ठा कर लेते थे और खिचड़ी बना के खा लेते थे. પછી એમની યાત્રા શરૂ થાય. પાણી પીવા માટે સાથે દોરી અને લોટો રાખે. ગામની ભાગોળે प्रथम नाई धोई ले. मतलब गांव के स्टार्टिंग में जो होता है ना, वो एकदम नहा धो लेते थे. उसके बाद उधर પછી એ ગામમાં પ્રવેશે. આ યાત્રામાં 2-3 વખત દોરી ખોવાઈ ગઈ. આથી એમને દોરી સાથે રાખવાનું માંડી વળ્યું मतलब छोड़ दिया. वो दोरी और लोटा साथ में लेके घूमते थे कि एक ही बार खाना खाते थे और खाना खाने के बाद किधर भी बीच में नदी या कुछ आए, कुआं आए, तो उधर दोरी से लोटा बांधते थे और उसमें से पानी पी लेते थे. लेकिन दोरी 2-3 बार खो गई तो उनने वो दोरी वाला पर्पस भी साइड में रख दिया. दोरी लेके जाना ही बंद कर दिया. હવે એમને એવો નિયમ લીધો કે બપોરે જમ્યા પછી પાણી પીવું, પછી 24 કલાક સુધી પાણી પીવું નહીં. આમ ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાત વડે એમને સેવા આરંભી દીધી. मतलब फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि दोपहर को जब खाना खाते हैं उसके बाद एक बार पानी पीने का, उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट दिन डायरेक्ट दोपहर को खाना खाएंगे, तब पानी पीना, बीच में कुछ भी नहीं. ऐसे कम से कम चीज़ों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना उनका मोटिव था. एक बार एमने संदेशो मळ्यो के कनबा नामना गाममां कोई वेपारीना घीना 2 डब्बा चोराया छे. महाराज तो पહોંચ્યા कनबा. घीना डब्बा ચોરી જનાર માણસને એ મળ્યા અને એને સમજાવવાનો प्रयत्न કર્યો, પણ પેલો मानस माने तो ने. मतलब वो इंसान पता चल गया तो कौन है, लेकिन वो इंसान मानने को तैयार नहीं कि चोरी उसने ही की. तो महाराज तो उधर पहुंच गए. महाराज ने उनको बहुत समझाया, पर वो इंसान एक्सेप्ट नहीं किया कि वो चोरी उसने की है. महाराजे उपवास आदर्या, मतलब उनने उपवास शुरू किए. पानीनो पण त्याग कर्यो. पानी पीना भी बंद किया. खाना पीना दोनों बंद कर दिया. पेला मानसना मन पर भागे असर થઈ. બીજા જ દિવસે રાત્રે એ મહારાજ પાસે પહોંચી ગયો અને ચોરી કબૂલી લીધી. પોતે ચોરેલા ઘીના 2 ડબ્બા પાછા આપ્યા અને ફરી ચોરી નહીં કરવાની એને प्रतिज्ञा લીધી. मतलब क्या हुआ कि वो इंसान को बहुत समझाया, बट उसने एक्सेप्ट नहीं की. तो महाराज ने खाना पीना सब छोड़ दिया. तो उस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि वो गलत कर रहे, उनकी वजह से कोई और खाना पीना छोड़ के बैठे. तो उनने एक्सेप्ट किया दूसरे दिन आके कि चोरी उनने की थी एंड घी के 2 डब्बे भी वापस लौटाए. ऐसा ही दूसरा एक और इंसिडेंट हुआ था. આવો જ બીજો પ્રસંગ બનેજડા ગામમાં બન્યો હતો. તે ગામમાં ચોરી થયાની સમાચાર જાણી મહારાજ ત્યાં પહોંચી ગયા. એમને તો ચોર ચોરી કબૂલ ન કરે ત્યાં સુધી ખોરાક પાણી કંઈ નહીં લેવાની જાહેરાત કરી દીધી. 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ ઉપવાસ તો ચાલ્યા. ચોર આવે નહીં. ગામના લોકો અકળાતા હતા. મહારાજ બધાને શાંત રહેવાનું કહેતા હતા. મહારાજને ઉપવાસનો 8મો દિવસ થયો. આખરે ચોરનું મન પીગળ્યું. તેને પશ્ચાતાપ થયો. તેને ચોરી कबूल કરી લીધી. महाराजना उपवास छूटिया. मतलब क्या बोला कि दूसरा बनेजड़ा नाम का एक गाँव था जिधर एक चोरी हुई. तो महाराज उधर पहुँच गए. उनने बहुत बोला कि जिसने चोरी की है एक्सेप्ट कर लो, बाहर आ जाओ. उनने उपवास भी करना शुरू किया, ना खाना ना पीना.
1 दिन गया, 2 दिन गया, इस तरह से 8 दिन हो गए वो उपवास पे थे। तो 8वें दिन तक तो चोर को कोई रियलाइज़ ही नहीं हुआ। 8वें दिन चोर को रियलाइज़ हुआ कि पश्चाताप हुआ, मतलब उसको दुख हुआ कि मेरी वजह से कोई और भूखा है। तो उसने चोरी एक्सेप्ट की और महाराज का फाइनली उपवास खत्म हुआ। આ તો વાત થઈ નાના ચોરોની, પણ મહારાજને તો માણસ પર એટલો બધો વિશ્વાસ કે બારવટિયાઓને સુધારવાનું પણ એ चूके नहीं। बारवटिया कौन होता है? जो दो गाँव के यूजुअली बीच में ना लोगों को लूटने का काम करते हैं, आदिवासी टाइप होते हैं, जिनसे गाँव वाले बहुत डरते रात को किधर निकलने के लिए। क्लियर? इस 1922 એમને પ્રથમવાર બારવટીઓનો ભેટો થઈ ગયો। ચિપિયાલ ગામથી તેઓ રાત્રે સરસ્વતી ગામમાં પાછા ફરતા હતા, ત્યાં રસ્તામાં જ બારવટિયા બેઠી ગયા। કાચો પોચો માણસ હોય તો છાતીમાં પાટિયા બેસી જાય, પણ એ તો મહારાજ નરી નિર્ભયતાની મૂર્તિ। એમને તો બારવટીઓને મહાત્મા ગાંધીની વાત કરી, આઝાદીની लड़तनी बात करी। मतलब क्या कि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे रात के टाइम, तो उनको वो बारवटिया मिले। तो नॉर्मल कोई इंसान हो तो वो तो एकदम डर जाए, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा नीडर थे, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इनको किसी से डर नहीं लगता था, बहुत साहसी थे। तो इनने बारवटियों का सामना किया, उनने बारवटियों को समझाया, उनने गांधी जी की स्टोरीज़ बताई, इनफैक्ट उनको बोला कि तुम भी इंडिया की स्वतंत्रता में अपना योगदान दो। क्लियर? બારવટીઓને ગાંધીજીનું કામ ઉપાડી લઈ સાચું બહારવટું ખેડવા સમજાવ્યું। પછી તો મહારાજે કોતરોમાં ભમી અનેક બહારવટીઓને સુધારવાની પ્રવૃત્તિ કરી। આથી જ તો ઝવેરચંદ મેઘાણીએ તેમને मानसाई दीवा कहा है। मतलब इसी तरह वो महाराज ने अलग अलग जगह पे जाके बहारवटियों को सुधारने का काम हाथे लिया। इसलिए झवेरचंद मेघाणी बहुत फेमस पोएट एंड राइटर है, जिनने रविशंकर महाराज के लिए क्या टाइटल दिया? मानसाई दीवा। मतलब इंसानों की लाइफ में एक चमत्कार लेके आए, एक उजाला लेके आए। ठीक है, आ रीते एक तरफ तेओ व्यक्तिना जीवनने सुधारवानी प्रवृत्ति करता, तो बीजी तरफ प्रसंग पड़िए लोगों पर आवी पड़ती कुदरती आपत्ति समय पण तेओ सेवा करवामां पाछी पानी करता नहीं। एक रात्रे रविशंकर महाराज सुंदरना गाम में हता, त्यारे धोधमार वरसाद पड्यो। रविशंकर महाराजे जे घरमां उतर्या हता ते घरनो करो तूटी पड्यो। महाराज कहे, मारू काम जेम तेम करी रात पसार करी। क्या बोला है कि इसी तरह महाराज एक तरफ लोगों को सुधारने की एफर्ट्स डालते, तो दूसरी तरफ किधर कोई आफत पड़ती, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती, तो उधर उसके लिए भी हमेशा रेडी होते हैं। कोई भी लोगों पे नशा। एक बार जिधर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिस घर में वो रुके थे, जिस गांव के घर में वो रुके थे, वो गांव का टूट गया था, माले टूट गया था, तो उसके अंदर उनने जैसे तैसे रात गुजारी। वरसाद हजू पण वरसतो ज हतो। पोतानी जवाबदारी पर एमने घरनाळुं तोड़ी पड़ाव्युं। गाम उगरी गयुं। त्याथी वरसता वरसादमां छाती समाना पाणी खूदता महाराज नजीकना वटादरा गामे पहोंच्या। त्यां वरसादथी अनेक मकानो पड़ी गया हता। महाराजे दोरडानी मददथी लोकोने नजीकना ऊंचाणावाळा भाग पर पहुंचाड़िया। मतलब वो एक गांव से दूसरे गांव गए, वो दूसरे गांव में काफ़ी घर टूट चुके थे बारिश के कारण। महाराज ने क्या किया? महाराज ने थोड़े ऊंची जो जगह होती है ना, थोड़ा हाई एरिया पे होती है जो प्लेस, उस पर लोगों को शिफ्ट किया ताकि वो लोग पानी में डूब ना जाए। वरसाद में पड़ता मतलब गीले होते होते अने टाड़े ध्रुजता मतलब ठंड से धूजते महाराजे कोईना पड़ता करने तेका गोठव्या, तो कोईना सलामत स्थळे खसेड़वाना काम में लागी गया। मतलब क्या, किसी के टूटे हुए घर को सुधारा और किसी को शिफ्ट करने में लग गए थे। लोगों तो एमने भगवान नो अवतार मानता, वो लोगों की इतनी मदद करते कि लोग उनको भगवान मानते थे। ठीक है, कि भगवान का कोई अवतार है जो इतनी लोगों की मदद करते हैं। तो वड़ी कोलेरा जेवो चेपी रोग फाटी निकळ्यो, त्यारे पण महाराज रोगाओनी वहारे धसी जाए। इस 1941 बात है। महाराजे छापा में समाचार वांचिया के, छापा मतलब जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, वैसे उनमें उन्होंने न्यूज़ सुनी कि कलोल गाम में
કોલેરા ફાટી નીકળ્યો છે અને માણસો ટપોટપ મરે છે. મહારાજ ત્યાં પહોંચી ગયા. ત્યાંની ગંભીર પરિસ્થિતિ જોઈ તેઓ અમદાવાદ આવ્યા અને કેટલાક સ્વયંસેવકોને સાથે લઈ કોલેરા રોગીઓની સેવા કરવા કલોલ પહોંચી ગયા. ગામના લોકો અંધશ્રદ્ધાને લીધે દવાખાનામાં જાય નહીં. કોલેરાના વિસ્તારમાં ફરી ફરીને મહારાજ સૌને સમજાવે અને દર્દીઓને દવાખાને લઈ જાય. એમના ઝાડા ઉલટી સાફ કર્યા, દવાઓ આપી, લોકોને સમજાવવા, સ્વયંસેવકો અને ડૉક્ટરોની વ્યવસ્થા કરવી. આ બધા જ કામોમાં મહારાજ જાતને પણ ભૂલીને એકરૂપ થઈ જતા. આવે વખતે એ મૃત્યુની પણ પરવા કરતા ન હતા. एक बार कलोल गांव, कलोल अहमदाबाद और आबू के बीच में गांव है जिधर कॉलेरा हो गया था, बहुत फैल गया था, लोग फटाफट मरना शुरू हो गए थे. मतलब जैसे महाराज ने ये बात न्यूज़पेपर में सुनी, वो तुरंत कलोल गांव गए. उधर से जैसे उन्होंने देखा स्थिति इतनी गंभीर है, तो उनने क्या किया, वो उधर से डायरेक्टली अहमदाबाद चले गए. अहमदाबाद में जितने भी स्वयं सेवक थे, जो लोगों की हेल्प करते, जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी होते, उनको उधर कलोल गांव ले गए एंड लोगों को समझाया दवा लेनी कितनी ज़रूरी है. डॉक्टर की व्यवस्था की, लोगों की उल्टी और पॉटी भी साफ़ किए. मतलब हर तरीके से लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की. और ये सब काम करते करते वो खुद की मृत्यु की भी परवाह नहीं करते थे कि भले मौत हो तो मौत हो, सेवा तो करनी है. ठीक है. દુષ્કાળ પડ્યો છે એમ સાંભળતા જ મહારાજ ત્યાં મદદે પહોંચી જાય. એકવાર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં દુષ્કાળ પડ્યો હતો, ત્યારે મહારાજ ત્યાં પહોંચી ગયા. આ પ્રદેશમાં લોકો પાણી માટે વલખા મારતા હતા. ત્યારે મહારાજે ગામડે ગામડે ફરી દિવસ રાત પરિશ્રમ કરી કૂવાઓ અને બોરિંગ કરાવ્યા. લોકોને એટલી બધી રાહત થઈ કે તેઓ महाराज ने बोरिंग वाला महाराज ना नामे ओळखावा लाग्या था. मतलब एक बार दुष्काळ मतलब ड्रॉट हो जाता है जिसमें पानी और खाने दोनों की कमी हो जाती है, तो पानी के भी लाले पड़ने लगे. तो महाराज उधर गए और महाराज ने उधर बोरिंग्स और कुएं खुदवाए, तो जिसकी वजह से उनको पानी की व्यवस्था इजीली हो गई. तो वो लोग महाराज को किस नाम से बुलाने लगे, बोरिंग वाला महाराज. मतलब उन्होंने महाराज को कौन सा टाइटल दिया, बोरिंग वाला महाराज. ठीक है. અરે એ તો હજુ ઠીક, પણ જ્યારે માણસો હેવાન બની અંદરો અંદર લડે, કાપાકાપી થાય, હુલ્લડ થાય, ત્યારે પણ જાનને જોખમે મહારાજે ત્યાં પહોંચી જાય. ઇસ 1941 અને 1946માં અમદાવાદમાં મોટા હુલ્લડો ફાટી નીકળેલા. મહારાજ તો નિર્ભય બની સુમસામ શેરીઓમાં ફરતા અને લોકોને સમજાવતા. હિન્દુ કે મુસલમાન બધા જ મહારાજની વાત શાંતિથી સાંભળતા અને એમને આદર આપતા. હુલ્લડમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના શબોનો અગ્નિ સંસ્કાર પણ મહારાજ જાતે જ કરતા. मतलब क्या बोला है कि जितनी भी राइट्स होती है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते, इस टाइप का भी कुछ भी होता है, तो महाराज क्या करते थे, हमेशा लोगों को समझाने जाते थे. एक बार 1941 और 1946 में अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैल गई थी. हिंदू और मुसलमान दोनों महाराज की बात बहुत अच्छे से शांति से सुनते थे. सुनसान गली में महाराज अकेले घूमते थे, लोगों को समझाते थे, लोग उनकी बात भी शांति से सुनते थे. और मरे हुए इस राइट्स में जो मरे हुए लोग थे, उनके अग्नि संस्कार, उनको जलाने का काम भी महाराज खुद करते थे. आवा तो अनेक प्रसंगो महाराजना जीवनमांथी जड़ी आवशे. आ बधा ज प्रसंगोए महाराजनी मानवताना, એમની અપાર હિંમતના, એમની અજોડ સેવા વૃત્તિના દર્શન થાય છે. આમ છતાંય મહારાજે કદી પોતાના કામોને ઢિંડોરો પીટ્યો નથી. જાત જાહેરાતની તો એ સદાય દૂર જ ભાગે. મૂંગા મૂંગા સેવા કરવી એ જ એમનો જીવન ધર્મ હતો. આથી જ તો એમને સૌ મુખ સેવક તરીકે ઓળખે છે. સોમું વરસ ચાલતું હતું ત્યારે महाराज स्वर्गवास थयो. मतलब क्या बोला है कि ऐसे तो महाराज के बहुत सारे इवेंट है जिधर उन लोगों ने उनने लोगों की बहुत सेवा की है, लेकिन इनमें से कुछ इवेंट्स इधर बताए गए. इससे ये साबित होता है कि वो ह्यूमैनिटी और अपार हिम्मत, मतलब एकदम निडरता से लोगों की मदद करते थे. और महाराज कभी भी अपने कोई भी काम का ढिंडोरा नहीं पीटते थे. हमेशा शांति से एक काम करते थे, फिर दूसरे काम के लिए निकल पड़ते थे. इसलिए उनको लोगों ने मुख्य सेवक नाम से भी
मुख्य सेवक नाम का भी टाइटल दिया। जब वो 100 ईयर्स के थे तब उनकी डेथ हो गई। जब वो 100 ईयर्स के थे तो उनकी डेथ हो गई। इस तरह धीरूभाई पारेख ने बहुत ही अच्छे से रविशंकर महाराज के कुछ ऐसे इवेंट्स बताए जिससे साबित होता है कि रविशंकर महाराज सिर्फ स्वतंत्रता के लिए नहीं बट लोगों की सेवा के लिए वे बहुत आगे थे। वो गरीब स्टार्टिंग से, जैसे उनने जो अनाथ आश्रम में बच्चों को एडमिशन करवाया, फिर अनाथ आश्रम के लिए फंड इकट्ठा किए, फिर लोग अलग अलग गाँवों को साफ किया, गरीबाई दूर करने की कोशिश की, बारिश के अंदर नेचुरल कैलामिटीज से भी लड़े, बारिश के अंदर लोगों के घर टूट गए वो घर ठीक किए, लोगों को शिफ्ट किया हाई प्लेस पे ताकि वो खुद बारिश में गीले होकर लोगों को बारिश से बचाया। कॉलेरा जैसे चेपी रोग, कंटेजियस डिजीज से भी लोगों को बचाया, उनको दवा दी, इनफैक्ट उनके उल्टी भी साफ की, हर जगह लोगों को समझाया, राइट से लोगों को समझाया, जो दंगाबाजी होती है, जो हिंदू मुसलमान के झगड़े, हर तरीके से लोगों को समझाया कि इधर चोरी होती तो वो उधर पहुंच जाते थे। तो हर तरीके से कैसे उन्हें लोगों की मदद की, कैसे लोगों को समझा के अच्छा इंसान बनाया, कैसे बाहरवटियों को भी उनने सुधार दिया। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटी का, निस्वार्थपन का और हमेशा लोगों की मदद करने का। रविशंकर महाराज एक बहुत ही ज़्यादा, और ना ही उनको कुछ भी पॉपुलैरिटी पसंद नहीं थी, वो सिंपल जाते थे और सिंपल वापस अपना काम करके दूसरे गांव लौट जाते थे। तो अपन ने इस चैप्टर में रविशंकर के महाराज के बारे में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स पढ़े। एंड गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस चैप्टर।